Hey Shikhar Bhaiya, many happy returns of the day. Well, we haven't talked much, but still, I'm glad to know a person like you is so sweet and supportive. As time passes by, I feel I may share things with you and you'll always guide me to take the right decision. Once again, happy birthday. Okay, first of all, I'd like to wish you a very happy birthday. You're turning 20 this year, that's a pretty big step. And second of all, I'd like to tell you that I'm proud to have you as my brother. You were always there to guide me, to keep me on the right track, and most importantly, you made me laugh. I know there have been moments where you used to get very irritated by the things that I did, but trust me, that was never my intention. I want to say a lot of things to you. I want to do a lot of things for you. But for now, I'll just say happy birthday, dear brother, and thank you for always being there for me. Adios. Naryal, a very happy birthday to you. I hope you get the best in whatever you do. Trust me, you're an amazing person. पहले I used to think कि तुम बहुत शांत से हो, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हो, but when I actually got to know you, I realized, and you know, like the perceptions have changed completely. It's okay, it's for good only. Anyway, have loads of fun, get drunk, and खूब सारी मस्ती करो, and have the best day ever. And I so wanted to be there, but college and timings and shit doesn't really match with your vacations. Let's just make sure at least once we should be in Bhopal together. But sending you all the love right from Bangalore, so feel lucky. Anyway, have loads of fun. I love you so much, and happy birthday. Okay, bye. जान, a big happy birthday to you, a big 20th birthday to you. तू बहुत बड़ा चूतिया है, सबको पता है. और इतना कॉन्शियस मत होया करो, पहले लंबी मत लगाया कर. तू काला है पर तू स्मार्ट है और तेरे को एक सेक्सी गर्लफ्रेंड भी मिल गई है. सो प्लीज, काला होना इतना बड़ा जुर्म नहीं. ध्यान रख अपना, enjoy कर, love yourself, love her and enjoy your life. हाय शिखर, हैप्पी बर्थडे. फाइनली अब तुम 20 साल के हो गए हो एंड फाइनली नाउ योर टीन इज़ ओवर. आई रिमेंबर कि अपन लोग एक ही बस में जाते थे एंड अपन का एक ही स्टॉप था, बट स्टिल अपनी कभी बात नहीं हुई. आई डोंट नो अपनी फ्रेंडशिप कैसे हुई, बट स्टिल इट्स रियली अमेजिंग टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू एंड यू आर अ रियली क्रेजी गाय. एंड आई रिमेंबर अपन लोग, तुम्हारा वे ऑफ वॉकिंग बहुत ही वियर्ड सा था. मतलब तुम पूरे एक टाइम पे तुम बिल्कुल पूरे नशेड़ी जैसे लगते थे. तुम्हारा लुक, तुम्हारा वे ऑफ वॉकिंग, तुम्हारा स्टाइल, इवन तुम्हारा फेस भी ऐसा लगता था कि तुम मतलब कहीं से पी के आए हो. एंड इट्स रियली क्रेजी अबाउट यू एंड आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस. तुम जो चाहते हो तुम्हें सब कुछ मिले एंड आई रियली लव यू अ लॉट एंड हैप्पी बर्थडे. बाय. शिखर चूतिए, अजितेश कुछ बोल रहा है. बोल दे कुछ. तो हैप्पी बर्थडे और हैप्पी बर्थडे, बाय. I look like shit, but Shikhar Don, this one's for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shikhar. Happy birthday to you. My favorite part, huh? You were born in the zoo. You were born in the zoo with monkeys and elephants and chimpanzees like you. Wish you a very and happening sa 20th sa birthday. You're no more a teenager, baby. You're no more a teenager. So stop PMSing. Okay, मुझे पता है लड़के PMS नहीं करते हैं. मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ. मुझ पे हंसना बंद करो. I know मैं थोड़ी ड्रामा कर रही हूँ, बट इतना तो चलता है ना. अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे बारे में क्या बोलूँ मैं तुम्हारे बारे में. What should I say about you, dude?
आई डोंट नो यार, बर्थडे पे सब एक दूसरे के लिए सब अच्छा बोलते हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या बोलूँ। पिछले बर्थडे पे आई वॉज नॉट देयर, बट माई लेटर वॉज देयर फॉर यू, जिसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी। आई होप तुम्हें याद है कि मैंने कितनी अच्छी बातें की थी तुम्हारे लिए, पर वो सब झूठ था। ओके, आई वॉज किडिंग, वो सब झूठ था। अच्छा ठीक है, आई एम किडिंग, वो सब सच था, वो सब एक बहुत बड़ा सच था। शिखर डॉन, तुम कहाँ थे स्कूल लाइफ में? डूड, तुम पहले मेरे दोस्त क्यों नहीं बने? तो पता है तुम इतने बड़े वाले पागल हो ना कि तुमने मुझे अप्रोच नहीं किया फ्रेंडशिप के लिए, प्रपोजल के लिए नहीं। तुम्हें भी पता है कि तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं स्कूल। अक्सर सोचती हूँ कि ये कविताएं लिखना क्या होता है, कविताएं करना क्या होता है। क्या ये कोई शौक है, आदत है, या फिर कोई नेमत? शायद ये सभी कुछ है, शौक भी, आदत भी और नेमत भी। कहते हैं कि एक संवेदनशील हृदय जब अपनी भावनाओं को अपने में समो नहीं पाता है तो वह उसे बांटना चाहता है, गुनगुनाना चाहता है, संवारना चाहता है, और कुछ इस तरह से कि अपनी या पराई पीर का फर्क खत्म हो जाता है। शायद इसी को कविता करना कहते हैं। अब सवाल है कि मैं क्या लिखती हूँ? बस अपनी आम सी जिंदगी में जो मुझे खास सा लगता है, कोई ख्याल या कोई एहसास, उसी को पहना देती हूँ शब्दों का जामा, उसी को उकेर लेती हूँ कागज पर, और वही बन जाता है मेरी कविता। कुछ ऐसे ही अपने से पलों में लिखी गई कुछ कविताओं में से 2 कविताएं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली कविता का शीर्षक है समंदर की लहरें। यह पति और पत्नी के उस रिश्ते को बयां करती है जहां बहुत समर्पण है, बहुत कमिटमेंट है, किंतु कभी लगता है कि कोई फासला रह गया, और कभी लगता है कि शायद ये फासला मन का भ्रम है। कुछ ऐसे ही अबूझ रिश्ते को बयां करती हैं ये पंक्तियां। मैं जिसकी जिंदगी में हाशिए पे चली जाती हूँ कभी, मैं जिसकी जिंदगी में हाशिए पे चली जाती हूँ कभी, वो कहानी है मेरे पूरे जीवन की। मैं बनती हूँ, संवरती हूँ, महकती हूँ, चहकती हूँ उसकी खातिर, समंदर में उन लहरों की तरह जो उठती हैं, गिरती हैं, बिखरती हैं, सिमटती हैं, कि छू लें उस सैलानी का तन मन, खींच लें उसके जीवन की हर जलन, हर तपन। पर वो बेखबर कभी तकता है आसमां, तो कभी समंदर में नाव को, और लहरें हैं कि मचल मचल उठती हैं, कितने अरमान से कदमों में आ के लिपटती हैं, कि जिंदगी बस यूं ही चलती रहे, उसके कदमों तले, उसके साये तले, उसकी निगाहों में, उसकी पनाहों में। दूसरी कविता जिसे मैंने शीर्षक दिया है मेरा बेटा, मेरे दिल के बहुत करीब है। इस कविता को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा इसमें कविता जैसा क्या है। बस यही इसकी विशेषता है, इसमें कविता जैसा कुछ भी नहीं है। यह हम और आपके दिलों की जुबानी है, हर समय हमारे दिल में बसी हुई भावनाएं हैं। मैं माँ हूं, मैंने प्राणों को सींचा है। मैं माँ हूं, मैंने प्राणों को सींचा है, महसूस किया है प्रकृति के स्पंदन को अपने अंदर, बढ़ी हूं उसके साथ साथ। फूलों का खिलना, पत्तों का झड़ना, तारों का टिमटिमाना, फिर गुम हो जाना बादलों में, सूरज का चमकना और ढल जाना सुदूर अंचलों में, सब देखा है अपने आसपास। पर भी हैरान हूं कि ये कब हो गया, मेरा नन्हा बेटा युवा हो गया।
कब उसके छोटे छोटे पैरों का नाप इतना बढ़ गया, कब उसके नन्हे नन्हे कदमों का माप इतना बढ़ गया, कब बदल गई उसकी खुराक, कब आवाज में उसके गूंज उठा नाद, कब अबोध चेहरे पे ठहर गया संज्ञान, कब प्रश्न पूछते पूछते वो करने लगा समाधान, कब घर की दहलीज को दुनिया की हद तक खींच दिया उसने, कब मेरी चिंताओं पर हंसना सीख लिया उसने। मैं सोच में पड़ जाती हूँ, कभी कभी आशंकाओं से घिर जाती हूँ। कितने सवाल, कितने ख्याल, पर वो अपने में व्यस्त, अपनी दिनचर्या में निढाल। मेरे मन की उलझन से कुछ कुछ वाकिफ, कुछ बेख्याल। बीते हुए सालों में बहुत कुछ बदल गया लगता है, पर सोते हुए आज भी वो मुझको मासूम सा लगता है। कुछ पल अब भी आते हैं जब वो सहम जाता है मेरे गुस्से से और देता है सफाइयाँ, तब मैं फिर जी लेती हूँ उसका बचपन और छू लेती हूँ उस बचपन की मासूम परछाइयाँ, छू लेती हूँ उस बचपन की मासूम परछाइयाँ। थैंक यू।